टुडे वी आर डूइंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन लीनियर इक्वेशंस. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट टाइप किया था एंड आज हम जो है वो सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप करेंगे. मीन्स विल डू टू टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन दिस क्लास. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर, अ फ्रैक्शन becomes 4 by 5. A fraction becomes 4 by 5 if 1 is added to both the numerator and the denominator, and if however 5 is subtracted from both the numerator and the denominator, the fraction becomes what? 1 by 2. Now we have to find the fraction. See what we have to find? We have to find the fraction, and a fraction is always in the form of numerator and the denominator. So what we'll do, we'll assume the numerator and the denominators first. So let the numerator be x and the denominator be y. If the numerator is x and the denominator is y, that means our fraction is, therefore the fraction is x upon y, where x is numerator and y is what? The denominator. Now the condition is what? Condition क्या given है? If 1 is added to both the numerator and the denominator, if 1 is added to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 4 by 5. 1 is added to both numerator and denominator. So what we'll do, we'll add 1 to the numerator and 1 to the denominator. So according to the first condition, one is added to both the numerator and the denominator. If 1 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes what? 4 by 5. Fraction is 4 by 5. अब हम इसको क्या करते हैं? We'll cross multiply it. 5 into x plus 1 is 5x plus 5 equals to 4y plus 4. That is 5x minus 4y equals to minus 1. This is our first equation. 4y को हम लेफ्ट पर ले आए एंड 5 को हम राइट पर ले गए. 4 minus 5 is negative 1. Now what is our second condition? Second condition is if 5 is subtracted from both the numerator and the denominator, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से ही हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है. तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, if 5 is subtracted from both the numerator and the denominator, that is x minus 5 upon y minus 5, and the fraction becomes what? The fraction becomes 1 by 2. फ्रैक्शन इज 1 by 2. फिर से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2x minus 10 equals to y minus 5, because 1 से मल्टीप्लाई होगा y minus 5. So this implies 2x minus y equals to 5. minus 10 उधर जाकर प्लस हो गया. Now we have two equations. First is this and second is this. Now we'll solve these two equations. 5x minus 4y equals to minus 1 and 2x minus y equals to 5. हम क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. विल मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड इसको हम एज इट इज रखते हैं. So this is 5x minus 4y equals to minus 1, and this is 4 to the 8x minus 4y equals to 4 5 the
20. Now we subtract these equations. Subtracting, we'll change the sign. This is 5 minus 8 minus 3x equals to minus 21. So x is equal to what? 7. 3 7s are 21. माइनस से माइनस कट हो गया. x is 7. नाउ x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं जिससे हमें y मिल जाए. तो हम किस इक्वेशन में? सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं. इट इज़ बेटर टू पुट इन सेकेंड इक्वेशन बिकॉज सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट से ज़्यादा सिंपल है. सो पुटिंग x equal to 7 in 2, we get 2x minus, equation is this, value place कर दें 2 into 7 minus y equals to 5. so 2 7s are 14, इधर जाकर माइनस हो जाएगा. so this is minus y equals to 5 minus 14. so this is minus y equals to minus 9, y is equal to 9. x भी आ गया हमारा, y भी आ गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज x अपॉन y. देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन y. x is 7 and y is 9. 7 अपॉन 9. हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं. वेरिफिकेशन हम रफ में कर सकते हैं साइड में. क्या कंडीशन है? इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब 7 में 1 ऐड कर दें विल बिकम 8, 9 में 1 ऐड कर दें विल बिकम 10 एंड दिस विल बिकम व्हाट? 2 4s are 8, 2 5s are 10. द फ्रैक्शन इज 4/5. नाउ सेकेंड कंडीशन हम चेक करते हैं. सेकेंड कंडीशन इज 5 is subtracted from both numerator and denominator. 7 minus 5 is 2 and 9 minus 5 is 4. This becomes 1/2. Both the conditions are satisfying, so our answer is correct. Now I take one more example of the same type. See, the question is, if the denominator of a fraction is added to its numerator, if the denominator of a fraction is added to its numerator and the numerator is subtracted from the denominator. see, यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की आपस में गिवन है. पहले हमने नंबर्स के साथ ली थी, राइट? नाउ फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट? द 11/3. फ्रैक्शन हमारा 11/3 हो जाता है. एंड इफ द डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 3, दिस इज अनदर कंडीशन. वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन. तो इसमें भी हम क्या करते हैं? विल अज्यूम न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर्स. लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y, right? So the fraction is what? X upon y. Therefore fraction is equal to x upon y. Now the first condition is what is the first condition here? The first condition is if the denominator of a fraction is added to its numerator. Denominator is added to the numerator, right? हमने क्या करा? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया. एंड द सेकेंड कंडीशन इसी में क्या गिवन है? एंड द न्यूमरेटर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर. सो y माइनस एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दिया. क्या कंडीशन है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करना है. द फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट? 11/3. फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है? 11/3. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. 3x प्लस
3y इक्वल्स टू 11y माइनस 11x। यहाँ पर ले आए इसको हम 11 प्लस 3 14x, एंड ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन है, सी द सेकेंड कंडीशन इज if the denominator exceeds the numerator by 3, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ग्रेटर है। सेकेंड कंडीशन, denominator exceeds its numerator by 3, so y equals to x plus 3। तो एक इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा यहाँ से, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 14x माइनस 8y, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 7 14, 2 4 8, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं। नाउ सॉल्विंग 1 and 2, 7x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। फर्स्ट इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इसको 1 से ही रहने देते हैं। तो ये हो गया 7x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, माइनस 7x प्लस 7y इक्वल्स टू 3 7 21। They have opposite signs, so we add the equations. On adding, this will cancel. 7 plus minus 4 is 3y equals to 21, so y is equal to 7। y हमारा 7 आ गया। हम किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं 7x minus 4y equals to 0, this is first equation। 7x minus 4 into 7 equals to 0, 7x equals to 28, x equal to 4। x 4 आ गया, y 7 आ गया। फ्रैक्शन इज x upon y, therefore the fraction is x upon y, that is 4 upon 7। दिस इज आंसर। इस क्वेश्चन में भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करना है। क्या बन गया ये 11/3। क्या कंडीशन थी, द फ्रैक्शन बिकम्स 11/3, सो आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ वी स्टार्ट विद द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो है ये हमारी डिजिट प्रॉब्लम है। तो 2 डिजिट नंबर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक मेथड भी बताऊंगा कि कहाँ तक तुम्हें करना ही करना है, राइट। सो जो क्वेश्चन है हमारा, द क्वेश्चन इज द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स of the number differ by 2, we have to find the 2 digit number। so जो भी digits वाले questions होंगे उसमें तुम्हें क्या करना है, first of all suppose the digit at ones place be x, हमने वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको x अज्यूम कर लिया, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस बी y। मतलब हमने क्या करा, वंस प्लेस का डिजिट x अज्यूम कर लिया एंड टेंस प्लेस का डिजिट हमने y अज्यूम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है से 34,
तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं, जो भी टेंस डिजिट पर होता है इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड वी ऐड द डिजिट ऑफ द वंस प्लेस, मतलब जो भी टेंस प्लेस पर डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है एंड उसमें वंस प्लेस का डिजिट ऐड हो जाता है टू गेट द 2 डिजिट नंबर. सो सेम हेयर वी हैव डिजिट एट वंस प्लेस x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस y, तो हम 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज व्हाट, टेंस प्लेस पर जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी ऐड द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस. दिस इज द ओरिजिनल नंबर, राइट. क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब हमें डिजिट्स को रिवर्स भी करना है तो हम वो नंबर भी ऑब्टेन कर लेते हैं. रिवर्स करना है मतलब ये वंस पर आ जाएगा और ये टेंस पर आ जाएगा. द नंबर obtained on reversing the digits, क्या बन जाएगा 10x प्लस y. जो वंस प्लेस पर था वो टेंस पर आ गया, जो टेंस पर था वो वंस पर आ गया. नाउ कंडीशन इज, मतलब अब जितने भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, मैंने अभी ये बताया था एक पॉइंट के कुछ स्टेप्स हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं. व्हेनेवर यू हैव द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर्स, तुम्हें ये जो 4 स्टेप्स हैं ये तो करने ही करने हैं. मतलब क्वेश्चन तुम्हें पता चल गया 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 स्टेप्स पहले से ही कर लो, क्वेश्चन वहां से ही प्रोसीड होगा जो भी होगा उसके आगे, मतलब डिफरेंस यहीं से आएगा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा. यहां पर जो कंडीशन है वो क्या है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 66 है. मीन्स 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y is 66. So here it is 10x plus x is 11x, 10y plus y is 11y equals to 66. पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दें, we'll get x plus y equals to 11 6 66. This is our first equation. Now the second condition is the digits differ by 2. दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है. डिजिट्स हमारे क्या हैं x एंड y, बट वी डोंट नो विच वन इज ग्रेटर. हमें नहीं पता कौन सा नंबर ग्रेटर है. उनका डिफरेंस अगर 2 है तो हो सकता है ये नंबर ग्रेटर है तो दिस माइनस दिस, और अगर ये नंबर ग्रेटर है तो दिस माइनस दिस. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉलो बोथ द कंडीशंस. हमें दोनों ही कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगी. एक कंडीशंस पर हम नहीं कर सकते, मे बी एक कंडीशन से हमारा आंसर ना आए, राइट. सी द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 2, तो वो x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है. दैट मीन्स इनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव 2 भी हो सकता है और नेगेटिव 2 भी हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, x माइनस वाई इज मे बी 2 पॉजिटिव और नेगेटिव 2. अगर x छोटा होगा तो नेगेटिव आएगा. सो हेयर वी हैव 2 इक्वेशंस, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, लेट इट बी द थर्ड इक्वेशन. अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट के साथ एक बारी सेकेंड को सॉल्व करेंगे और एक बारी हम थर्ड को सॉल्व करेंगे. तो पहले हम फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं. Solving 1 and 2. First equation is x plus y equal to 6. Second equation is x minus y equals to 2. On adding, we get 2x equals to 8, x equals to 4.
फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू प्लेस कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 2। x इज 4, y इज 2, तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? देयरफॉर द नंबर इज 10y प्लस x, 10 into y plus x, so this is 24। एक तो हमारा नंबर 24 आ गया। अब हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, on solving the equation 1 and the third equation. First equation is x plus y equal to 6 and the third equation is x minus y equals to -2। इसको भी हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4, x इक्वल्स टू 2। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, y equals to 4। Therefore, the number is 10 into 4 plus 2, that is 42। Means two numbers are possible based on the given two conditions जो कि हमें इस क्वेश्चन में given है। And I add additional question to this question, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन 1 मार्क का ऐड हो जाता है, 1.5 मार्क का, दैट हाउ मैनी नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी नंबर्स आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। सो हेयर वी हैव 2 नंबर्स बिकॉज कंडीशन हमारी पॉजिटिव नेगेटिव पर बेस्ड थी एंड उससे हमें सेम कंडीशन पर वी गॉट 2 इक्वेशंस एंड उन दोनों को साइमल्टेनियसली जब हमने फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व करा, we have 2 answers। So 2 numbers are possible in this statement। Now next example of the same type, 2-digit questions, and the question is a number consisting of 2 digits, a number consisting of 2 digits is equal to 7 times the sum of the डिजिट्स, मतलब जो भी डिजिट्स हैं उनके सम के 7 टाइम्स है जो 2 डिजिट नंबर है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इंटरचेंजेस देयर डिजिट्स, मतलब जो नंबर है उसके जो डिजिट्स है वो इंटरचेंज कर लेता है, राइट। सो हेयर द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 2 डिजिट्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी x एंड द डिजिट एट 10th प्लेस बी y। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑब्टेन करना है एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स भी करना है। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज 10y प्लस x, बिकॉज जो 10th प्लेस पर डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें यूनिट प्लेस का डिजिट ऐड हो जाएगा। एंड द नंबर ऑब्टेन्ड by reversing the digits will be 10x plus y। डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया। अब हम अपनी कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन क्या गिवन है, जो नंबर है 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। मीन्स दिस नंबर जो कि 2 डिजिट नंबर ओरिजिनल नंबर है
इट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स हमारे क्या है x एंड y, 7 टाइम्स x प्लस y, इसको सिंप्लीफाई करें 10y प्लस x इक्वल्स टू 7x प्लस 7y, यहाँ पर ले आते हैं x माइनस 7x इज माइनस 6x, 10y माइनस 7y इज प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 3 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 2x प्लस y इक्वल्स टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज व्हेन 27 is subtracted from the number which number, the original number. When 27 is subtracted from the original number, मतलब जो हमारा सेकेंड कंडीशन है, when 27 is subtracted from the original number, that is 10y plus x original number है, 27 is subtracted, the digits interchange their places, मतलब कि 10x plus y मीन्स अगर हम ओरिजिनल नंबर में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो नंबर मिलेगा उसमें ओरिजिनल नंबर के जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे. अब इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ये हो जाएगा x माइनस 10x माइनस 9x, 10y, y इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस 9y रह गया, 27 दूसरी साइड चला गया, पॉजिटिव हो गया, राइट. 9 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 9 3 ज़ा 27, तो ये आ गया हमारा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये आ गई हमारे सेकेंड इक्वेशन. 9 से डिवाइड कर दिया. अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर दें. फर्स्ट इज माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, ये कट हो गया, माइनस 2x प्लस एक्स इज माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 3. x हमारा 3 आ गया. किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन, सो माइनस 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल टू 6. हमें डिजिट एट वंस प्लेस भी पता चल गया जो कि 3 है, डिजिट एट टेंस प्लेस भी पता चल गया जो कि y है. देयरफॉर द नंबर इज, ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x, मतलब 10 इंटू वाई प्लस x इज वॉट 3, 60 प्लस 3, नंबर इज 63. दिस इज आंसर. अब हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे? अ 2 डिजिट नंबर जो कि हमारा 63 है इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स. चेक करें, 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स 3 प्लस 6, 63 इक्वल टू 63. फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड. एंड सेकेंड कंडीशन इज when 27 is subtracted from the original number is 63. When 27 is subtracted, we get 13 minus 7 6, 5 minus 2 3, we get 36. मतलब इनके जो डिजिट्स हैं दे आर रिवर्स, 63 से 36 बन गया. तो ये दोनों कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. तो